इकोनोमाइजेशन मतलब कि कंप्रेशन में कहीं पे हम लोग रेफ्रिजरेंट को एक तरीके से ऐसा बोलेंगे कि मतलब बाईपास किया हुआ रेफ्रिजरेंट हम वहाँ पे ले रहे हैं, मतलब कंप्रेसर इज वर्किंग इन 2 चेम्बर्स बेसिकली। तो इन पैरेलल यहाँ पे देखिए इधर से कोई तो फ्लो आ रहा है, ठीक है, विच इज और एक फ्लो इधर से है, ओके। So there is a gas cooler and expansion is in 2 stages. This is stage 1 3 to 4 and this is stage 2 5 to 6. तो हम इसको बाय ये ही देखते हैं explanation. In the parallel compression refrigeration system, after the expansion of transcritical fluid from state 3 to state 4, that is this, through the primary expansion valve, the liquid state 5 and vapor 7 are separated in economizer. मतलब जो liquid है वो 5 and vapor है वो 7, liquid है वो 5 and vapor है वो 7, ऐसा separate किया in economizer, okay, and the liquid is again expanded through another expansion valve and it is extract heat to give useful cooling effect in the evaporator. तो वापस फिर ये जो सैचुरेटेड लिक्विड था इसको evaporator में सेंड करके हमने required refrigerant effect we have achieved over there, okay, जो कि है from state 6 to 1, okay. Now what is newness in the compressor? The refrigerant vapor is compressed to supercritical discharge pressure in 2 separate non mixing stream. मतलब एक स्ट्रीम जो इधर से आ रही है और एक स्ट्रीम इधर से, कंप्रेसर ये दो इसमें है नॉन मिक्सिंग, दो सेपरेट चेंबर्स में नॉन मिक्सिंग वाले, ओके। सो वन कमिंग फ्रॉम एन इकोनोमाइजर, ये जो एक इकोनोमाइजर की तरफ से आ रही है स्ट्रीम, एंड अदर इज कमिंग फ्रॉम द मेन इवापोरेटर, ओके। सो द बोथ सुपर क्रिटिकल फ्लूइड मिक्स एट स्टेट 9, मतलब ये इधर से 7 पे आने वाला, इधर से 1 पे आने वाला, 7 1, ये ऑब्वियसली यू विल गेट अ डिस्चार्ज एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट से 2 and 8, और ये दोनों मिक्स होके बनेगा 9 पॉइंट, ओके। सो स्टेट 9, so the both supercritical fluid mixes at state 9 and enters to the gas cooler for heat rejection to external fluid. तो फिर यहाँ पे वो एंटर होके एक्सटर्नल फ्लूइड्स को like obviously gas cooling will occur over there. So this compressor is a simply two separate non-mixing streams में डील कर रहा है यहाँ पे, मीन्स 2 separate chambers were there, ओके। डायग्राम अगर हम निकालते हैं तो यहाँ पे उसे रिप्रेजेंट कर पाना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने सिंपली कंप्रेसर ही रखा है, खाली 2 इनपुट स्ट्रीम्स बताए हैं, ओके। सो दिस इज द कंसेप्ट एंड वेरी सिंपल डायग्राम. इफ वी गो बाय द डायग्राम वाइज 1 to 2 there is a normal yes, in first chamber there is a compression 1 to 2, 7 to 9 there is another, 7 to 8 there is in another chamber there is a compression. फिर ये दोनों स्ट्रीम मिक्स होके बनेगा स्टेट 9. देन 9 to 3 गैस कूलिंग, 3 to 4 फर्स्ट एक्सपेंशन, उसके बाद में सैचुरेटेड वेपर इधर, सैचुरेटेड लिक्विड इधर, सैचुरेटेड लिक्विड अगेन एक्सपांड होके इधर में आएगा कंप्रेसर में, और ये सैचुरेटेड ये जो सैचुरेटेड वेपर था ये सीधा कंप्रेसर के अनदर चेंबर में जाएगा और कंप्रेस होगा, ओके. So this is the basic concept behind parallel compression economization. Parallel compression मतलब दो चेंबर्स में कंप्रेसर के पैरेलली कंप्रेशन हो रहा है, एंड इकोनोमाइजेशन मीन्स जो सेपरेटिंग फ्लैश चेंबर है वो इकोनोमाइजर है सिंपली, ठीक है. तो what we have achieved by doing it, but parallel compression, quality of refrigerant decreases in the evaporator and both refrigerant effect and compressor work increases, okay. So but increase in compressor work is less than increase in refrigerating effect, hence COP increases. So quite simple कि अगर हमें COP बढ़ाना है तो ऑब्वियसली इनपुट कम करना होगा एंड आउटपुट मोर. तो यहाँ पे हो ऐसा रहा है कि इंक्रीज इन रेफ्रिजरेंट इफेक्ट इज मोर देन इंक्रीज इन कंप्रेसर वर्क, सो COP इंक्रीज होगा, ओके. Through the theoretical analysis and experimentation for air conditioning application with addition of superheat for the primary compression path, यही बेल 2004 का पेपर है ये, shows that the economized carbon dioxide system outperforms a similar hydrocarbon system in terms of efficiency and capacity under some condition, and it is most efficient for the lower gas cooler exit temperature for fixed discharge pressure. अभी यहाँ पे कैसे है कि डिस्चार्ज प्रेशर फिक्स है,
अगर फिक्स डिस्चार्ज प्रेशर एप्लीकेशंस में हम इसे यूज़ करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। हालांकि आप बहुत सारे ये देखोगे, ये देखिए यहाँ पे डिस्चार्ज प्रेशर बहुत ज़्यादा है। ओके, देन कमिंग टू दिस पॉइंट। ओके, तो यहाँ पे भी देखिए दो कंप्रेसर है। पहले तो एक इंटरमीडिएट डिस्चार्ज है, देन फाइनल डिस्चार्ज है, फाइनल डिस्चार्ज। एंड हियर यू कैन सी यहाँ पे तो पूरा मतलब वायरिंग ही है। ओके, डिस्चार्ज। सो इन दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन ये काफ़ी इफेक्टिव है, पैरेलल कंप्रेशन इकोनोमाइजर से। वही इस पर्टिकुलर इसने बेल 2004 के में जो पेपर पब्लिश हुआ था उसमें बताया है। ओके, employing parallel compression economizer is not only improves the optimum cooling COP but also brings down the optimum discharge pressure। अभी क्या है कि ये एक पर्टिकुलर डिस्चार्ज प्रेशर पे ही पूरा प्रोसेस हो रहा है, तो सिस्टम पहले अगर समझो 100 PSIG पे काम कर रही है, उसको आपने लोअर डाउन किया 80-60 PSIG, तो व्हाट विल हैपन? Yes, suppose you are building a system for 100 PSIG and now you need to build a system for say around 60 PSIG. So what will happen? Higher pressure, high temperature, to withstand with the high pressure and high temperature, you need to build a very robust system. Comparatively for the lower pressures, you need to build a little, you can say complex system over there. So what will happen? Your cost and all the things will be lower down. और फाइनली यही तो हम लोग चाहते हैं ना कि ज़्यादा अगर डिस्चार्ज प्रेशर है तो आपको उतना रिवर्स सिस्टम भी बनाना पड़ता है। ओके, सो सिमिलरली मैं ये थोड़ा इसको इलेबोरेट करना चाहूँगा यहाँ पे कि अगर आपको पावर जनरेशन कोई भी साइकिल एक पकड़ो, अगर उसमें आपको इफिशियंसी बढ़ानी है तो व्हाट द थिंग्स यू कैन डू। पहली चीज़ तो आप ये कर सकते हो कि स्टीम का प्रेशर आप स्टीम का टेम्परेचर प्रेशर आप बढ़ाओ। ओके, और नेक्स्ट थिंग आप क्या करते हो कि जो भी आपका वेस्ट हीट रिकवर हो रहा है वो करो। तो हम लोग वेस्ट हीट रिकवरी के तरफ ही क्यों गए? टू लोअर डाउन द टेम्परेचर विच इज एग्जिस्टिंग फ्रॉम द स्टीम टर्बाइन, बिकॉज वी नो कि अगर हम हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के तरफ जाते हैं तो हमें उतना रिबूस्ट सिस्टम बनाना होगा, फिर सिस्टम का कॉस्ट बढ़ेगा, सिस्टम का कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा, देन सिस्टम का लाइफ कम होगा। ओके, सो अकॉर्डिंगली तो वही ये चीज़ यहाँ पे बताया है, बाय एम्प्लॉइंग पैरेलल कंप्रेशन इकोनोमाइजेशन इज नॉट ओनली इम्प्रूव द ऑप्टिमम कूलिंग सीओपी बट ऑल्सो ब्रिंग्स डाउन द ऑप्टिमम डिस्चार्ज प्रेशर, जो कि हमें काफ़ी कॉस्ट वाइज एंड लाइफ वाइज एंड मटेरियल वाइज हमें वो काफ़ी यूजफुल है।